Hello students. Now today we starting the functions exercise 2.3. So remaining one function just define here, signum functions, right? The function f defined by the fx is equal to mod x by x where x does not equal to 0. Yeah, 0 when x is equal to 0, right? Okay, so here fx is equal to -1 0 1 when x greater than 0, right? And 0 x greater than equal to 0 and -1 then x less than 0. This is called the signum functions, right? You already know that the modulus function, greatest integer and smallest integer functions. Again, this is the domain is R, but range is see that here you put the any value -1 0 and -1, so -1 0 1 are the range of the signum functions, right? Okay, now graph. So graph of this you see here, right? The graph of the signum functions, right? So 0 to 1 that this point, and okay, 0 to -1, so -1 0 and 1, right? This is the normally the graph of the range of the functions. Clear? Okay, so now let's start the operation on the real operations on the real functions. So the first of that operation on the real function, the first is a operation is a addition, second is a product, third is a difference, and fourth is the quotients. So addition, that means the let the function f from d1 to r and the g from the d2 to r b are the two real functions, then their sum is f plus g, right? Is defined as that the function from d1 intersection d2 d2 to r, yani x which is belongs to d1 d2, okay, and b tends to r, so with associated each x belongs to d1 intersection d2 to the number of f of x plus g of x. यानी आप यहाँ पे एक चीज सीधे लिख सकते हो बच्चों, ओके क्या? तो यहाँ पे एक सीधी बात है, कौन सी? तो क्या f प्लस g, ओके, of x, so is equal you return here f of x plus g of x, right? For x belongs to d1 intersection d2, ये हमें दे दिया है. Now product, right? So let again f from d1 tends to r and g from d2 tends to r be the two real function, then their product f into g is a function from d1 intersection d2 to r, right? And it is defined as a f of x, f g of x is equal to fx into gx for all x belongs to d1 intersection d2, right? This is the product. Now difference, so subtraction या फिर, so let the again the f from d1 tends to r and g from d2 tends to r with the two real functions, then their difference, yeah, subtraction of the g from f is defined by f minus g, and is defined as f minus g of x is equal to fx minus gx for all x belongs to d1 intersection d2, right? Now quotients, let f from d1 tends to r and g from again d2 tends to r be the two real functions, then the quotients of f by g, yani f of it denoted by f by g, so it is function from d1 intersection d2 minus x where gx does not equal to 0, right? Intersection में नहीं आएगा क्योंकि denominator 0 तो is not defined हो जाएगा, so that's why reason, nothing the reason for others defined by. So f of x, f by g of x is equal to fx upon gx for all x belongs to d1 intersection d2 minus x, gx is equal to 0. Clear? This is the all type of the function and the properties you already learned, right? And in previous lecture and also the today. Now let's start the exercise 2.3, right students? Okay. Okay, chalo. So now
First, which of the following rational functions give the region, and if it is a function, determine the domain and also range. ओके, तो चेक करते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके पास पेयर क्या है? 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1, राइट। चलो देख लेते हैं इसमें क्या है। ओके, सुनो, so the question 1, the of 1, the pair is given that क्या था पेयर में? 2 1, another functions is a 5 1, ओके, और क्या था? शायद 8 1 था। ओके, देन आफ्टर 8 1 के बाद था 11 1, 14 1 17 1। ये मैं इरेज कर देता हूं, आपको क्लीन दिखाई दे। चलो 17 1, राइट। तो इसको देखते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है। तो सबसे पहले देखो x की वैल्यू। ओके, तो वैल्यू ऑफ x हियर, वैल्यू ऑफ x, ओके, ऑल आर डिस्टिंक्ट, सब अलग अलग है। क्या है? सब अलग अलग है, राइट। तो हम लोग लिखेंगे ऑल values of x are distinct, right। चलो बच्चों, क्या है? डिस्टिंक्ट है क्या? नहीं, बराबर। चलो, ऑल द वैल्यूज ऑफ x डिस्टिंक्ट है, राइट। और क्या लिखते हैं? सो द ईच वैल्यू ऑफ x हैज अ यूनिक वैल्यू ऑफ y, राइट। x की यूनिक वैल्यू यानी इमेज हमें y में मिल रही, राइट, y है ऐसा। तो अल्टीमेटली क्या होगा? तो चलो चेक करते हैं। ओके, हियर मेरे पास मान लो चलो यहाँ पे क्या था? 2 5 8 11 14 17, राइट। चलो यहाँ पे क्या आया? 1, क्या आया? 1 बच्चों, राइट। ओके, तो आपने देखा कि ए रिलेशन 5 8 11 14 17, right। So all connected to 1, so therefore, okay, here the relation is a function, relation is a function here, right। तो यस आप कह सकते हो here the relation is a function। चलो तो चेक कर लेते हैं। तो फिर अब हमारी जरूरत है डोमेन। क्या है? डोमेन। चलो बताओ डोमेन क्या है बच्चों? डोमेन आप कह सकते हो 2 5 8, राइट, 11 14 17। चलो ये मिल गया। अब किसकी बारी? रेंज की। चलो रेंज क्या है बच्चों यहाँ पे? तो 1, क्या है? सिंगलटन सेट आ गया 1। चलो क्लियर। तो फर्स्ट में है डोमेन और रेंज भी मिल गया। चलो अब नंबर 2 ऐसे ही हम लोग सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2, राइट। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 2 1 4 2 2 1 4 2 6 3 2 1 4 2 2 1 4 2
4263. Okay, 246. Now 8 8 4 10 5 12 12 के साथ कौन है 6 and 14 कार्टेशियन पेयर विद 7, राइट. ओके, तो हमने इक्वेशंस लिख दिया. अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है बच्चों, देखो तो सीधे क्लियरली, ओके क्लियरली क्या कह सकते हैं हम लोग, ऑल मोस्टली ऑल एलिमेंट्स ऑफ एक्स. देखो एक्स के मतलब ऑल आर कैसे डिस्टिंक्ट है, कैसे डिस्टिंक्ट. ओके, तो आप लिख सकते हो कि ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स आर distinct, right? So each value of x has a, क्या लिख सकते हैं, यूनिक है, यूनिक वैल्यू ऑफ y. चलो आ गया, हमें हर एक की एक एक इमेज मिलती है, राइट. चलो चेक कर लेते फिर उसी की तरह जैसे अभी हमने किया था. तो सेट बनाते, इस डायग्राम से शायद जल्दी पता चल, राइट. दूसरा हमारे पास साइड है ऐसे ही. चलो कोई ना कोई तो फंक्शन होगा, राइट. चलो लेट्स सी दैट हमारे पास क्या है. इसके अंदर एक तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, राइट. ओके, सिमिलरली हमारे पास जो सामने है वो ओके एक एक करके 1 फिर 2, ओके 2 3 4 5 6 7, राइट. चलो आपने ये तो कर दिया. हम लोग चेक 2 है, इट इज रिलेटेड टू 1, 4 2 6 3. चलो ऐसा ही है, यस. 8 4, तो 8 बच्चों 4, फिर 10 5 दिख रहा है, 12 6 दिख रहा है, 14 7, राइट. देखो तो हर एक की, राइट. यहाँ पे आपके पास राइट, तो हर एक की यूनिक इमेज आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही, राइट. यहाँ पे तो आप कह सकते हो, राइट. सो हियर function, here the relation is a function. क्या है बच्चों, रिलेशन इज अ फंक्शन यहाँ पे. ओके, तो अब बात आई डोमेन की. बताओ चलो डोमेन क्या दिख रहा है, ये पहले वाला डोमेन होता है. तो आप अब जान चुके फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द पेयर 2 4 6 8 10 12 एंड 14. रेंज, तो रेंज को हम लोग नॉर्मली क्या कहते थे बच्चों, ओके एक्स की जो इमेज मिलती है हमें बी के अंदर वो, तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7. चलो क्लियर, अंडरस्टैंड. ओके, तो चलो अब थर्ड वन करते हैं तो थोड़ा और समझ में आए. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है. क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा था 1 3, ओके. उसके बाद 1 3 1 5, ओके, एंड 2 5 और 2 5, राइट. तो एक बात समझ लो, ए वाला एक ये, एक वाला ये सेट है. इधर 1 एंड 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 एंड 5 आ रहा है, राइट. तो 1 इज कनेक्टेड टू द 3 and 1 is also connected to 5 and 2 also connected, okay, to 5, right. तो यहाँ पे बच्चों सीधी बात है, एक ही दो इमेज मिल रही है ना, तो
तो यूनिक इमेज होनी चाहिए. Okay, so A has a two image. Okay, A have the two image. Okay, from B, so it is not possible. So सीधी बात है, the relation okay is not a function. Okay, क्यों नहीं है? क्योंकि A की दो इमेज हमें B में मिल रही है, इसकी वजह से. So A have the two image 3 and 5. So okay, so this is not a function. चलो क्लियर आ गया बच्चों समझ में. ओके, तो आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पे. राइट, क्वेश्चन नंबर 2. तो क्या दिया बच्चों 2 में? फाइंड द डोमेन इन द रेंज ऑफ द fx इज इक्वल टू माइनस मोड x एंड fx इक्वल टू अंडर रूट 9x स्क्वायर. क्या है? अंडर रूट 9x स्क्वायर. राइट, तो चलो चेक कर लेते हैं. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड डोमेन एंड रेंज. राइट, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है हियर? fx इज इक्वल टू माइनस एक्स. चलो यहाँ पे फंक्शन आपका क्लियर है. fx कैसा फंक्शन है बच्चों? ये मॉड्यूलस फंक्शन. तो मॉड्यूलस फंक्शन आपने देखा था. राइट, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव. व्हेन x ग्रेटर देन 0, ओके, एंड व्हेन x लेस देन 0 देन लेस देन. राइट, याद आया? ओके, तो फंक्शन तो क्या था? सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ओके, सबसे पहले तो डोमेन ओके ऑफ fx is equal to r, right? Because for all value of x which it belongs to r. सीधी बात है. ओके, ऑल रियल वैल्यू के लिए डिफाइन है. राइट, सो ऑल वैल्यू ऑफ r. तो हमें क्या मिल गया बच्चों? r मिल गया. ओके, ऑल वैल्यू ऑफ x, रियल वैल्यूज. चलो आगे बढ़ते हैं. तो अब रेंज की बारी. किसकी बारी? रेंज की बारी. राइट, डोमेन ऑफ fx. सो यहाँ पे हम जानते हैं ए, तो व्हेन बच्चों क्या लिख सकते हो बताओ? व्हेन, सॉरी, हाँ ए रहा. चलो व्हेन x, व्हेन x लेस देन 0 अगर है तो मॉड्यूलस x क्या आएगा? माइनस x आएगा. राइट, सो देयरफॉर f ऑफ x क्या हो जाएगा? आगे माइनस साइन तो है, मोड x की जगह पे आपने क्या लिख दिया? राइट, मोड x की जगह पे माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा बच्चों? x. बट x तो क्या है? लेस देन 0. नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो सिंपल है, मोड x इज इक्वल टू 0. सो f ऑफ x इज इक्वल टू ओके 0 हो गया. क्या हो गया? 0. राइट, ओके, तो आगे बढ़ते. ये तो आपने कर दिया, ए वाला इधर कंप्लीट कर देते. चलो नाउ व्हेन x विच इज ग्रेटर देन 0, तो आप जानते हो मोड x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव x आएगा. बट हमारा तो fx क्या है? माइनस मोड x, तो मोड x है माइनस x विच इज लेस देन 0. राइट, तो हियर f ऑफ x विच इज हियर 0 लेस देन और कोई भी वैल्यू हो. राइट, तो विच इज द लेस देन 0. क्या आया? fx इक्वल टू r है, तो fx इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 0 आ गया बच्चों. क्या गया? लेस देन और इक्वल टू 0. राइट, कह सकते हो आप. ओके, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, यानी बराबर. तो सीधी बात है बच्चों, रेंज ऑफ फंक्शंस. सो रेंज ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू, देखो 0 और 0 से छोटा, तो सीधी बात है ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटिव, सॉरी ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटिव, ओके, टू 0.
राइट, 0 इंक्लूड है तो क्या माइनस इन्फिनिटी टू 0 आप लिख सकते हो। तो एक ओपन क्लोज इंटरवल आ गया। चलो क्लियर। नंबर 2, चलो बच्चों नंबर 2 क्या है, एफ एक्स इक्वल अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो नंबर 2, here the f of x is equal to 9 माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों। तो सीधी बात है, अगर रियल है तो सो ये तो स्क्वायर रूट फंक्शन तो रियल होता है। सो 9 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, वरना ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा बच्चों, पॉसिबल, राइट। ओके, तो वह तो है तो रियल फंक्शन, सो दैट्स व्हाई कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा दोनों। सो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डोमेन सबसे पहले, राइट। सो डोमेन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x, वेयर x 9 माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब मैं उसको थोड़ा चेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ, कहना है राइट एक्स स्क्वायर माइनस 9 विच इज लेस देन और इक्वल टू 0, यस कर सकते हो। सो देयरफॉर x दैट मीन्स क्या आ जाएगा, x प्लस 3 एंड ऑल्सो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास बच्चों क्या आ गया, डोमेन तो आ गया, क्या आ गया, ओपन इंटरवल a, आप लिख सकते हो -3 to 3, क्या आ गया, सो क्लोज इंटरवल सॉरी -3 to 3, ये डोमेन मिल गया, राइट। अब किसकी बारी, रेंज की। चलो रेंज के लिए 2-3 चीज, डोमेन आया तो ये चीज तो क्लियर है, बोलो कौन सी चीज क्लियर है, कि भाई एफ एक्स जो हमें दिख रहा है ना नॉर्मली, राइट। आप क्या लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू बच्चों 9 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। क्या है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक्स 0 रखो तो भी 9, तो 9 का स्क्वायर रूट तो 3, तो यानी कोई भी आप वैल्यू रखोगे, 1 रखता हूँ, 2 रखता हूँ, माइनस कोई भी स्क्वायर है तो क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, ऑल ग्रेटर और इक्वल टू 0। ओके, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू for x belongs to -3 to 3, राइट। तो बहुत सीधी बात है बच्चों, रेंज क्या आ गई, सो देयरफॉर रेंज ऑफ फंक्शंस। अब सोचो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू 0 आ सकती है, अगर 0 करूँ तो क्या हो सकता है, x0 लूँ, x9 लूँ तो मैं कह सकता हूँ कि अगर 0 लूँ तो कोई भी वैल्यू मिल सकती है, और 3 ले तो 0 मिल सकता है, तो 0 पॉसिबल है, इक्वल टू है, तो मैं इसको क्लोज रख रहा हूँ 0 to इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल। चलो क्लियर, रेंज ऐसा आ गया, लेकिन रेंज एंड डोमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी फंक्शंस, राइट। नाउ अब हम लोग आए क्वेश्चन नंबर 3 पे। फंक्शन f डिफाइन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5, राइट डाउन द वैल्यू f0 f7 f माइनस 3, 0 7 एंड माइनस 3 बच्चों लानी है, एफ एक्स है 2x माइनस 5। चलो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे बच्चों आपके पास क्या है, ओके फंक्शन, कौन सा फंक्शन है आपके पास, नॉर्मली 2x माइनस 5 है। ओके चलो कौन कौन सी वैल्यू ढूंढनी है, तो सबसे पहले हमारे पास है बच्चों f0, क्या आएगा 2 into 0 minus 5, you got -5, then after f7, so 2 into 7 minus 5, then 14 minus 5, 9, f ऑफ हमारे पास है -3, तो f ऑफ -3 मैं भूल जाता हूँ, सो -3 -5 -6 -5, so I got -1,
चलो क्लियर, इतना आसान था। क्वेश्चन नंबर 4 चेक कर लेते हैं बच्चों। तो 4 क्या है आपके पास, राइट। चलो ऊपर ले जाते क्वेश्चन नंबर 4, एक बार फिर से चेक कर लेते हमारे पास जो फंक्शंस है। ओके, तो क्वेश्चन 4, TC is equal to 9C by 5 plus 32 9C by 5। उसके बाद चेक करते हैं सेल्सियस के ऊपर कितने कितने टोटल 4 फंक्शन चेक करने हैं, राइट। चलो चेक कर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो फंक्शन TC डिफाइंड बाय 9C by 5 plus 32। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कौन सा लेना है, T ऑफ, ओके, T ऑफ 0 है। क्या है, T ऑफ 0 फंक्शन बच्चों। तो इसके अंदर C की जगह पे 0 है, सो A तो 0 हो गया, प्लस 32, यू गॉट 32 आंसर। चलो उसके बाद हमारे पास है T ऑफ C की जगह पे क्या दिया है बच्चों, हमें ढूंढना है T28, सो इज इक्वल टू 9 into 28 डिवाइड बाय 5 एंड प्लस 32 ऐसा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, 28 ऐसा ही है, 9 है हमारे पास। ओके, सो 252 प्लस 32, 5 2 10, सो 160 एंड डिवाइड बाय 5, टोटल कर दो 2 1 एंड ओके 4। ओके, तो कितना जाएगा 4 1 2 एंड डिवाइड बाय 5 बच्चों, कोई डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। एंड अदर वैल्यूज इज T minus 10, T minus 10, तो वैल्यू पुट कर दो बच्चों 9, C की जगह पे -10, -12 -8 4 1, कितना आ गया बच्चों 14 आ गया। चलो और एक है, इफ द वैल्यू ऑफ C एज व्हेन द TC इज इक्वल टू, ओके, सो TC इज इक्वल टू हमारे पास सम के अंदर 212 है। क्या है 212, ओके, यहाँ पे C ढूंढना है, सॉरी ये मैं इसको रब कर देता हूँ। ओके 212 आ गया बच्चों, राइट। अब क्या करेंगे, ये वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे आपके पास TC क्या है 9C by 5 प्लस 32 बच्चों इज इक्वल टू 212, implies that 9C by 5 इज इक्वल टू 212, नहीं तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। सो 9C इज इक्वल टू 180 इंटू 5, सो C इज इक्वल टू 180 इंटू 5 बाई 9, सो 20, तो कितना हो जाएगा 100, राइट। कितना हो जाएगा बच्चों 100। चलो क्लियर, ओके, बहुत कितना आसान है रबर ए पोर्शंस आपके चैप्टर का। लेकिन रेंज एंड फंक्शन इससे भी टफ पूछ सकते हैं। ओके, तो उसकी प्रिपरेशन बच्चों हो तो सीधी बातें करनी पड़ेगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हमें रेंज, ओके, फाइंड रेंज, फाइंड रेंज। चलो चेक कर लेते हैं बच्चों, फाइंड रेंज। क्वेश्चंस क्या है, फाइंड द रेंज when the fx is equal to 2 minus 3x when x belongs to R, x greater than 0। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, fx is equal to 2 minus 3x है where x belongs to R and x is greater than 0। तो शुरुआत इसी से करते हैं, x greater than x, तो सॉरी इज माय मिस्टेक, क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो 3x इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 बट -3x विच इज लेस देन 0, सो 2 minus 3x लेस देन, हमने दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया, सो दिस वन। सो रेंज ऑफ दिस फंक्शंस कितनी दिख रही बताओ, तो 2 से कम बच्चों, तो -∞ to 2 ओपन इंटरवल, राइट।
चलो नंबर 2 पे चलते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 2, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स इज ए रियल नंबर। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2, राइट, ओके। तो चलो सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ओके, एक्स इज रियल नंबर। तो क्या, मुझे बताओ, अगर x है, यहाँ पे x बिलोंग्स टू r है, राइट, तो x स्क्वायर विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 2 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, समझ रहे हो, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि x आपको रियल दिया है ना, x क्या दिया है यहाँ पे, रियल दिया है, राइट, x बिलोंग्स टू r है आपके पास, राइट, x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r लिख सकते हो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए पॉसिबल है। क्या कर दिया आपने, 2 यहाँ पे ऐड कर दिया दोनों तरफ, तो ये तो फंक्शन हो गया। सो फंक्शन एफ एक्स विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू r, तो रेंज क्या हुई इसकी, आप रेंज लिख सकते हो, बोलो 2 और 2 से ज्यादा, 2 इनफिनिटी, क्लोज और ए ओपन। चलो आ गया समझ में बच्चों। नाउ थोड़ा, कोई बात नहीं, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। तो देखो x की कोई भी वैल्यू रखोगे आप x ही रखोगे, तो x क्या रखोगे, बिलोंग्स टू r, तो आप कह सकते हो हियर x बिलोंग्स टू r है, तो ये तो सीधा साधा फंक्शन है बच्चों, रेंज हो गई यहाँ पे r, क्योंकि x ही मिल रहा है ना आपको, जो r वाली कोई भी वैल्यू रखोगे वही वैल्यू मिलेगी, तो रेंज इज इक्वल टू r। सो दिस एक्सरसाइज इज वेरी इजी, वेरी इजी, राइट, ओके, समझ में आ गया बच्चों। तो अब लास्ट में चिल्ड्रंस एक्सरसाइज ही बाकी बची है, तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें पूरी एक्सरसाइज एक साथ खत्म हो जाएगी। सो आई थिंक यू नो ऑल द फंक्शंस, टाइप ऑफ द फंक्शंस, ओके, योर concept is clear now. So thank you for watching my video and spending time for me, okay, till then, and bye bye.